Hi students, I hope you all are doing well. Okay, so today's topic is about derivatives. I'm starting a series of it where I'll explain the concepts, what basic concepts, basic formulas, and basic rules of derivatives. So if you like it, I'll make more of them. So अब हम start करें हैं derivative होता क्या है? So derivative is all about finding slope of a function. So we can say it is all about finding slope of a function. So for example, we have this graph in which its slope is increasing at x-axis and y-axis. So if we need to find the change in slope between 2 points, we'll say there is change in x-axis as well as y-axis. So this change is along y-axis and the change here is along x-axis. So how can we find the change between two axes, between the slope, between 2 points of the slope? We can use the formula which is slope is equals to change in y-axis over change in x-axis. So we know we can find the slope by using this formula, change in y divided by change in x-axis. It is easy to find slope when we have straight or linear slopes, but when we go towards the critical graphs or the slopes like this or this, like parabolas, it is difficult to find slope between two points. Like if we need to find the slope between these 2 points, we'll say that this is the change in x-axis and this is the change in y-axis. So in this case, these types of graphs, we use derivatives, we use formulas of derivatives to find the slopes. So in general, we can say that derivatives are the ways of finding a slope. Okay, let us find a derivative of a function. This is a function, represent the slope along x-axis and y-axis. To find a derivative of a function y equals f of x is a function and we have to find the derivative of function, we use this slope formula as below. We can say slope equals है change in y as we know it and over change in x. So change in y can be written as delta y. Delta represents change. Change can be found like second value minus first value. So change in x can be written as delta x. So here is the slope formula and we can find derivative by this formula. For example, there is a function, there is a slope and we need to find the slope between these 2 points. We need to find change, we need to find derivative between these 2 points. So we can say from here to here there is a change in x-axis. So we'll write delta x and from here to this point there is a change in y-axis. We can write delta y, that means change in y-axis. So we can say x changes from x towards x plus delta x. So when x is changing, the first value is x and it is changing to x plus delta x, the original value plus the change value. Y changes from function of x towards function of x plus delta x. So we can write y as a function of x because these are two values along x-axis. We can say y is a function of x. It can be written as y is equals to f of x. Y is a function of x. So in order to find the derivative, we need to follow these steps. First, fill in this slope formula. Fill in all these values in the slope formula.
As y is the function of x, so delta y over delta x would be equal to function of the changed, that means the second value minus the original function. From here, as I said, y changes from x changes from x to delta x, so y changes from function of x to function of x plus delta x. This is delta x. Second step is we need to put in the values and simplify them. Third step is then make delta x shrink towards 0. That means हमने डेल्टा x को लिमिट अप्लाई करनी है. That means delta x is approaching towards 0, or we can write it as limit x delta x approaches to 0. That means फंक्शन में वो लिमिट अप्लाई होगी और जहाँ जहाँ डेल्टा x है वो वैल्यू हम अप्रोच करवा देंगे 0 की तरफ, towards 0. For example, we have a function is f of x which is equals to x square. This is the function x square. We can calculate change in this function by using the formula of slope. So we can say that first step is to fill in the slope formula. So we can say that the change in the function x plus delta x is equals to x plus delta x square, because it is square. So we can say that its change must be original value plus the change in the value. Now we need to simplify it. That means we need to expand it. So we'll get x square. We need to open the formula. We are using the formula of a plus b whole square. So first value square plus 2 into first value into second value plus second value square. That means delta x square. Now I need to put this in the slope formula. So f of x plus delta x equals x square plus 2x delta x plus delta x square minus this function f of x was x square divided by delta x. So from here we can see this x square and this negative x square, this is positive and negative, can cancel out each other. We'll get 2x delta x plus delta x square over delta x. सो यहाँ हमारे पास ये डेल्टा एक्स न्यूमिनेटर में और ये डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 2x. विल ओनली गेट 2x. और इस साइड पे ये 1 डेल्टा एक्स विल कैंसिल विद दिस स्क्वायर और यहाँ पे न्यूमिनेटर में सिर्फ एक डेल्टा एक्स रह जाएगा. सो फ्रॉम हेयर हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी, 2x, दे बोथ विल कैंसिल आउट और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा डेल्टा एक्स. So अब थर्ड स्टेप हमारा था, we have to move delta x towards 0, approach is 0. That means we have to apply limit. We can say that after applying limit delta x approaches towards 0, 2x plus, अब ये डेल्टा x जब 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास रह जाएगा 2x. ओरिजिनल फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर. उसका अब जो स्लोप फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जब लिमिट अप्लाई की हमारे पास ये आंसर है. डैट मीन्स जो स्लोप है एक्स स्क्वायर की वो है 2x. और वी कैन से डैट कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, दिस साइन, दिस डैश साइन रिप्रेजेंट्स फर्स्ट डेरिवेटिव. We have took derivative only one time. So first derivative equals 2x. First derivative of the function, this dash sign represents the derivative, equals limit, although we have to apply limit at the last step. Function, change in function minus original function divided by delta x, change in the value of x. So that's how we can find a derivative with the help of the slope formula. So in general form, the derivative is commonly written as
d by dx into y, which is equals to function first derivative of x. That means we are taking derivative with respect to x of any function. Y represents a function, y equals to f of x. Y represents any function. If we take derivative of this, we will write it as dy by dx equals derivative of the function. ये था इंट्रोडक्शन, डेरिवेटिव्स क्या हैं और हाउ कैन वी फाइंड डेरिवेटिव्स विद द हेल्प ऑफ स्लोप फार्मूला of any slope. Hi students, we have discussed derivation. Now we'll discuss their rules. There are some specific rules to find derivatives of specific numbers or terms. So first rule is multiplication by constant. If the function is written in the form of multiplication, like there is some constant and it is multiplying with the function, how we will find the derivative of that function? So for example, we take a function that is 3x. 3 is a constant and x is a variable or a function. अगर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो हम कैसे लेंगे? इसका डेरिवेटिव आएगा constant as it is डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. दैट मीन्स जो भी कांस्टेंट साथ है वो ऐसे ही लिखा जाएगा और जो फंक्शन है सिर्फ उसका डेरिवेटिव काउंट होगा. यहाँ पे अभी फंक्शन x है और यहाँ फंक्शन कुछ भी हो सकता है, 2x, 3x, x स्क्वायर, एनीथिंग. सो अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेने के ट्राई करें तो कांस्टेंट एज इट इज़ डेरिवेटिव द फंक्शन, दैट मीन्स 1, x का डेरिवेटिव 1 होता है. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3. सो सेकंड इज हमारे पास सेकंड है पावर रूल. पावर रूल का क्या मतलब है? कोई भी अगर वेरिएबल है, फंक्शन है x और उसकी पावर में कोई भी नंबर है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? पावर रूल में क्या का तरीका है? पावर पहले, उसका डेरिवेटिव लेना है तो पावर पहले, फंक्शन में से पावर में से 1 माइनस इनटू डेरिवेटिव जिसकी भी पावर थी, लाइक जो भी फंक्शन था. यहाँ पे फंक्शन x है तो यहाँ x लिखा जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैंने लेना है, मेरे पास एक फंक्शन है x क्यूब. अब इसकी जो पावर है वो 3 है. दैट मीन्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको लिख सकती हूँ पावर पहले, दैट मीन्स 3. अब लिखना है मुझे x n-1 मीन्स 3 - 1 विच इज़ 2 और डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1, सो आई विल गेट 3x स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट इज सम रूल. सम रूल में क्या है? एज इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, एडिशन. जब भी कोई फंक्शन एडिशन की फॉर्म में लिखा है तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है प्लस जी मीन्स आपके पास कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, एनीथिंग. सो उसका डेरिवेटिव किस तरह से आएगा आपके पास? उसका डेरिवेटिव आपके पास आएगा फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस जी का डेरिवेटिव. इट कैन बी कांस्टेंट और वेरिएबल. फॉर एग्जांपल वी टेक अ फंक्शन दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x. अब यहाँ पे x स्क्वायर है और प्लस सम अप्लाई हो रहा है इसमें और 2x, इसमें हम सम रूल लगाएंगे. कैसे लगाएंगे? x स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लेंगे सबसे पहले जिसमें फंक्शन का डेरिवेटिव है. x स्क्वायर का डेरिवेटिव में हम पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल. ठीक है. जिसमें आ जाएगा 2 पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, दैट मीन्स 2 - 1 वुड बी 1 और वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है. और डेरिवेटिव ऑफ x मीन्स 1, वो मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा. प्लस 2x का डेरिवेटिव, g का x डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव. इसमें हम कांस्टेंट लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट वाला रूल, जिसमें 2 एज इट इज़ लिखा जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 है तो इसका मतलब है आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा. सो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 2x + 2. नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ रूल है डिफरेंस रूल. जिस तरह से सम रूल है सेम एज इट इज़ हमारे पास है डिफरेंस रूल. डिफरेंस रूल में हमारे पास क्या आ जाता है? अगर हमारे पास कोई फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ f - g, दैट मीन्स कोई भी फंक्शन और उसके साथ कोई भी टर्म है, इट कैन बी वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट, उसका हमारे पास डेरिवेटिव आना चाहिए f डैश - g डैश. लाइक
सेम एज द सम रूल के फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव माइनस और जी का डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, हम ले लेते हैं सेम एग्जांपल लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में पावर रूल अप्लाई होगा, उसका आ जाएगा 2x माइनस इसके में हम कांस्टेंट वाला रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1, दैट मीन्स ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल मतलब मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन है, उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इट कैन बी कांस्टेंट और वेरिएबल, उसका आप डेरिवेटिव कैसे लेंगे, उसके डेरिवेटिव के लिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेंटर में आएगा प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये आपने याद कर लेना है। इसको याद करने का तरीका मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टर्म है 2x मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, एक फंक्शन है जिसमें हमारे पास ये f है और ये g है। सो हमने इस पर प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करना है, हम ये कहेंगे ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड है, हम लिखेंगे फर्स्ट एज इट इज़, दैट मीन्स 2x एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। इसका डेरिवेटिव अब क्या आएगा, आप लिखेंगे d बाई डी एक्स प्लस 1, सेंटर में आएगा प्लस। अब ये सेकंड फंक्शन एज इट इज़, उसके साथ आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 2 कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट रूल अप्लाई होगा तो 2 आपके पास आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई 2। सो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2x, इसका डेरिवेटिव आपके पास आएगा 1, x का डेरिवेटिव 1 और इसमें सम रूल अप्लाई होगा और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है कांस्टेंट का, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस जब इस 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यह आ जाएगा 2x प्लस 2। जब आप सॉल्व करेंगे इसको आ जाएगा 2x प्लस 2x, दैट मीन्स 4x प्लस 2। इसमें हमने 5 रूल्स कवर किए हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, पावर रूल, सम रूल, डिफरेंस रूल एंड प्रोडक्ट रूल। 6th रूल हमारे पास है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में क्या होता है, जिसको आप डिवीजन रूल भी कह सकते हैं, कोई भी ऐसा फंक्शन और डिवीजन की फॉर्म में उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है 2/x³, इसका आप डिवीजन क्वोशंट रूल के थ्रू डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे सेकंड फंक्शन क्या है x³ एज इट इज मल्टीप्लाई फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस फर्स्ट फंक्शन 2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन x³ का आ जाएगा 3x² डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ पावर रूल और x³ का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 0 हो गई टर्म, माइनस 2 × 3 6x² ओवर 3 × 2 6, ठीक है। और आप इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं 6/x³। सर नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है रेसिप्रोकल रूल। इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन है डिवीजन की फॉर्म में है क्वोशंट रूल ही, लेकिन उसमें हमारे पास न्यूमरेटर में ओनली 1 है हमारे पास। तो इसका बहुत इजी वे है, इसको हम लिख सकते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव विद द नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय द फंक्शन का स्क्वायर, इसी फंक्शन का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी फंक्शन है 1/x², तो आपने अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्वेश्चन रेसिप्रोकल रूल के थ्रू निकालेंगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव, दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा x² का डेरिवेटिव 2x माइनस डिवाइडेड बाय फंक्शन का स्क्वायर दैट इज x4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x³। अगर कोई फंक्शन इस तरह से है और अगर आप यही क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे तब भी आपके पास आंसर सेम आएगा, बस प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी होगा। चेन रूल में हमारे पास क्या है कि कोई भी फंक्शन है उसके साथ कोई भी एक और फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट कुड बी
कांस्टेंट और अ वेरिएबल, सो उसके लिए हमें क्या अप्लाई करना होगा कि पहले एक फंक्शन लेंगे, उसका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का, मल्टीप्लाई द सेकंड फंक्शन एज इट इज, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ये तीनों चीज़ें, तीनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इसको इस तरह से भी समटाइम्स चेन रूल कर लेते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हमने निकालना है dy बाई डी एक्स, तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, dy बाई डी एक्स वुड बी इक्वल टू dy बाई डी यू मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स। इसको हम आगे एग्जाम्पल सोल्व करके देखेंगे और चेक करेंगे हमारे पास ये किस तरह से रूल्स जो है वो एप्लीकेबल हैं। सो नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम कवर करेंगे एग्जाम्पल्स यूजिंग द रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन फंक्शन इंटू एक्स स्क्वायर। सो हम इसको अगर चेन रूल के थ्रू अप्लाई करना चाहें, चेक करना चाहें, तो वो कैसे करेंगे। हम इसमें अप्लाई करते हैं चेन रूल। हमारे पास फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ जी, आ जाएगा हमारे पास साइन, और जी ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, एफ ऑफ जी का डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव होता है कोसाइन, जिसको हम कोस भी बोलते हैं, और जी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो आएगा वो 2x। अब हम चेन रूल में अप्लाई करके देखते हैं फॉर्मूला में। ये हमारे पास फॉर्मूला है फंक्शन इंटू जी एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। सो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया है, एफ डैश हमारे पास क्या आई है, कोसाइन, ठीक है, और सेकंड फंक्शन जी एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। जी डैश एक्स, जी का जो डेरिवेटिव है वो क्या आया है, 2x। जब आप इसको अरेंज करेंगे विल गेट 2x कोसाइन एक्स स्क्वायर। सो ये हमारे पास चेन रूल के थ्रू डेरिवेटिव निकला है इस फंक्शन का। सो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास डेरिवेटिव आया है ऑफ दिस फंक्शन, इसको हम y भी कह सकते हैं। लेट सपोज ये जो फंक्शन है वो y के इक्वल है, सो हम कहेंगे डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू, इसका जो डेरिवेटिव जब हमने ले लिया तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू 2x कोसाइन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो डेरिवेटिव को निकालने के बहुत से तरीके हैं, हमने आज रूल्स चेक किए हैं, और हम डेरिवेटिव को इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं। ये एक अनदर नोटेशन है डेरिवेटिव लिखने की, जिसका मतलब है dx का मतलब है कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द x। वेरिएबल कौन सा है, x। वेरिएबल कौन सा था, x। सो इसके रिस्पेक्टिव हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो हमने d बाई डी एक्स लिखना होता है। y का मतलब क्या है, y एक फंक्शन है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन लेट कर सकते हैं आप, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। और अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में इस फॉर्म में ना लिखना चाहें, इस फॉर्म में लिखें, तो भी इसका मतलब यही है, ये डैश रिप्रेजेंट करता है कि हमने डेरिवेटिव लिया है फंक्शन का। और अगर आप यहाँ डबल डैश लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा वो आपका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है कि आप ये जो आपका आंसर आया फर्स्ट डेरिवेटिव का, आप इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम इसको यहीं तक रखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव तक। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये इंट्रोडक्शन था, इसके कुछ रूल्स थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसके फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और सम बेसिक फार्मूलाज टू सॉल्व द डेरिवेटिव्स और उसके एग्जांपल्स। आप मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, और मेरी ईमेल भी प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको मुझे कोई भी रिक्वेस्ट करनी हो तो।